Namaste, everybody. Welcome back to MG Live on Business. Let's take off today. It's a very important subject which we have lined up for today: how to deal with non-performing team members or non-performing employees. और मुझे लगता है कि जितना इस सब्जेक्ट के बारे में सोचो उतना एक रियलाइजेशन आता है दैट दिस सब्जेक्ट इज सो इन डेप्थ एंड सो वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि organizations they thrive on the in the quality of people they have. Organizations they kind of survive based on the kind of people they have who are willing to go all out to help the organization survive. So कभी surviving phase आते हैं, कभी challenging phase आते हैं कंपनी में, कभी growth phase आते हैं कंपनी में. तो एक organization के लिए बड़ा जरूरी है. एंड आई एम श्योर एज एंटरप्रेन्योर्स आप लोगों ने समझा होगा कि एज ऑर्गेनाइजेशंस वी आर एज गुड और एज बैड एज द पीपल वी हैव विद अस, राइट और नॉट. सो आज का ये सब्जेक्ट है एंड आई विल बी शेयरिंग सम इनसाइट्स विद ऑल ऑफ यू. नमस्ते एवरीबॉडी हु हैव जॉइंड इन. Good to see you, Praveen, Namdev, Rachna. Wonderful to see all of you. As you keep on joining, you can have your questions. ये people based जो है ना, जब भी मैं सेशंस लेता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेक्टिव होते हैं because you have a lot of questions which people have regarding people. So and I don't call one thing which I've been taking care of and I've been sharing with entrepreneurs, और मैं आपसे भी शेयर करता हूँ कि see if you can avoid calling your team as employees. If you can call them team members, if you can call them colleagues, वो एक अच्छा फ्लेवर आता है because the moment you say they are employees then you become an employer and then a lot of divisions happen. दीवारें unknowingly बीच में दीवारें खिंच जाती हैं. So why to create a wall when we can avoid that wall? So see if you can call your employees as team members. So that's the first thing which we can start with. And ये जो सेशन आज का है, आई बीन शेयरिंग इट एवरी वेडनेसडे इन द मॉर्निंग एट 7. तो ये दीज आर बिजनेस इनसाइट्स व्हिच आई शेयर. और ये आया कहाँ से? दिस केम फ्रॉम द वेरी feedback we got from people that I've been taking live sessions every Saturday morning. और अगर आपने वो नहीं सुना है तो you can also log in for that or you can register for that. They are free sessions. So every Saturday morning for the last 25 years we have been conducting these sessions called Happy Minds, and they have been life based. So उसमें काफी questions आते थे business के ऊपर. Sometimes I would answer and sometimes I would skip because it's a life based subject. So बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे business questions answer नहीं हो रहे. So then I decided to start on another a live session on YouTube in the form of my business insights. So ये उसका वहाँ से ये that's how this session came into existence. And every week I've been taking some of this other session on leadership. On like last week I was speaking on the importance of meetings and the kind of meetings we have with us. So today is one more subject. So I'll be speaking. देखो आज मैं जो बात करूँगा उसमें कुछ शब्द आएंगे in terms of the three categories of team members you have with you. So there is one which is called incompetent team member, but he is well intentioned. Then another one is he's a well intentioned guy, but he's incompetent. So there's another one where he's ill intentioned and incompetent. There's another one which is called he's ill intentioned and competent. बहुत एक challenge होता है कि how do you deal with people? So I'll share with you 3-4 categories of people and see if your team, where your team member falls in that. और ये insights are from my business programs. For example, I have one program called Ara Samasti. तो कभी आपको मौका मिले वो प्रोग्राम करने का तो आइए. It's a beautiful. We have kind of revised we have revised the entire syllabus, revisited the entire format, and it's a 7-month, 8-month beautiful program. And every month we have a couple of sessions lined up for next 7-8 months. And that's a 13-14 sessions का बड़ा जबरदस्त program है. So it's a journey which people go with me, and we have taken almost 39 batches of that. It was named, rechristened over a period of time, started with the name of EEP, the Entrepreneur Empowerment Program. From there it became the Game of Business, and now it's called Ara Samasti. So around 39 batches we have conducted of that program, and hundreds and of entrepreneurs have done that program. So वहां से कुछ insights है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ.
चलो चलो, लवली टू सी ऑल ऑफ यू. सो अभी ये टीम मेंबर्स का इंपॉर्टेंस आपको मालूम है. ऑर्गेनाइजेशंस आर एज गुड एज बैड एज द टीम मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट होने दो, आपके पास कितनी भी अच्छी सर्विस होने दो, बट द पीपल हु कैरी दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द कस्टमर, अगर वो काबिल नहीं है, वो अगर अलाइन नहीं है, वो अगर जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं है, या फिर वो कंपनी के विजन को कैरी नहीं करते, then they kind of become a liability. And I believe that all team members should be an asset, and that's what every entrepreneur seeks. In fact, मुझे याद आ रहा है नारायण मूर्ति का एक स्टेटमेंट, उन्होंने 20-25 साल पहले एक स्टेटमेंट बोला था, and that statement was something which I read it and it just stayed stuck in my mind. तो उन्होंने एक बिजनेस मैगजीन में उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था that my team members or our employees at Infosys, they are our assets. तो ये सभी बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे एसेट्स हैं, बट उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसको पेश किया. उन्होंने कहा कि every evening at 5:36 when our day ends, I see my balance sheet kind of becoming lighter and kind of becoming null and void because all our assets they walk out. तो शाम को हमारी बैलेंस शीट जो है ना बड़ी इम्बैलेंस सी हो जाती है because we have no assets. And in the morning, we wait for our assets to come back and make our balance sheet healthy. So look at the way he would think about team members in Infosys. And I feel that's the approach. और ये बड़ा जरूरी है कि आपका अप्रोच क्या है आपके टीम मेंबर्स के प्रति. And the more they believe that the organization is kind of interested in the holistic well-being, जितना उनको विश्वास होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जहां वो काम कर रहे हैं, वो उनके ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओवरऑल एग्जिस्टेंस पे के लिए चिंतित है या वरिड है या उस पे काम करना चाहती है, द मोर दे विल फील प्रोडक्टिव, द मोर दे विल फील कनेक्टेड. और जितना वो कनेक्टेड फील करेंगे उतना प्रोडक्टिव होंगे, जितना प्रोडक्टिव होंगे उतनी कंपनी आगे बढ़ेगी, उतनी ही कंपनी प्रॉफिटेबल होगी. दैट्स हाउ इट इज. सो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज, they lead to making companies more productive because they kind of interact and deal with customers in a very productive way. तो उसमें से कुछ insights आज हम समझते हैं. So you're there with me? हाँ, शुरू करें आज का. चलिए, great. The first thing which you got to do is understand when we're talking about non-performing team members. तो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आई गॉट 4-5 पॉइंट्स टू शेयर विद यू, वेरी सिंपल पॉइंट्स. और जब मैं आपसे शेयर करूंगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो इतने सिंपल थे, और आपको मालूम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे, या फिर मालूम होंगे तो कहीं ना कहीं आप कर नहीं रहे हो उस पर काम. सो फर्स्ट व्हाट विल हैपन इज आई विल गिव यू अ स्ट्रक्चर इन व्हिच दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड सेकंड इज यू गॉट टू डू टेक एन एक्शन ऑन दैट. एंड ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको ना सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग टीम मेंबर्स के लिए हेल्प करेंगे, बल्कि जो एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स हैं या जो नए लोग टीम मेंबर्स आ रहे हैं उनके साथ भी डील करने के लिए आपके अच्छे रहेंगे. बिकॉज काइंड ऑफ न्यू टीम मेंबर्स ज्वाइन इन, उनको एक फ्लो चाहिए होता है कंपनी के अंदर फॉर देम टू बिकम परफॉर्मर्स. बट जब वो फ्लो नहीं होता, सो इवन केपेबल गाइज दे काइंड ऑफ बिकमिंग नॉन परफॉर्मर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम. तो आते तो हैं एज अ परफॉर्मर, बट हमारा माहौल अंदर से ऐसा होता है कि कहीं जाने अनजाने में वो नॉन परफॉर्मर्स बन जाते हैं. एंड नॉन परफॉर्मर्स आर अ बिग लायबिलिटी. ये हमारे बॉटम लाइन को इरोड कर देते हैं, क्योंकि मीटर चालू है, सैलरी जा रही है हर महीने की, बट उनसे जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए वो नहीं आती. तो सिंपल पॉइंट्स है. नंबर 1, इंश्योर दैट देयर इज एक्सपेक्टेशन सेटिंग डन. बहुत जरूरी है दैट व्हेन अ टीम मेंबर जॉइंस इन और इफ अ टीम मेंबर इज नॉन परफॉर्मिंग, तो सबसे पहले आप जाइए ड्राइंग बोर्ड पे वापस एंड एक्सपेक्टेशन सेटिंग करिए. अक्सर क्या होता है कि जब किसी को हायर किया जाता है ना, तो हायर किया जाता है बेस्ड ऑन जॉब प्रोफाइल. अगर मैं मानूं कि जॉब प्रोफाइल रेडी है, बहुत बार तो जॉब प्रोफाइल भी रेडी नहीं होता. आपको एक अंदाज होता है कि हाँ भाई दिस इज द वर्क व्हिच आई हैव टू डू. सो इस सेल्स में आदमी को लाना है, तो आपने सेल्स में कहा अच्छा सेल्स के लिए आदमी चाहिए जो बिजनेस लेके आएगा, धंधा लेके आएगा, बट उसका डिटेल जॉब प्रोफाइलिंग नहीं होता. और कभी कभी जॉब प्रोफाइलिंग होता है, बट जॉब प्रोफाइल चेंज होता रहता है एवरी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, अ ईयर. जो जॉब प्रोफाइल बनाया था हमने और आज जो हम चाहते हैं वो बदल गया है. सो यू गॉट टू काइंड ऑफ रिविजिट योर जॉब प्रोफाइल एंड मेक इट द वे इट इज रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ. बट अक्सर एंटरप्रेन्योर्स ये करने से चूक जाते हैं.
तो कई बार तो ऐसा होता है कि जॉब प्रोफाइल किसी और का कॉपी किया होता है, कि किसी और दोस्त ने कहीं पर एचआर प्रोसेस बिठाए हैं, तो आपने कहा यार हम कहाँ अपना बिठाएंगे, हम कहाँ कंसल्टेंट लेके आएंगे, तो हम उसका कॉपी कर लेते हैं, यार तू दे दे अपना। वो भी हमारा अच्छा दोस्त है, उसने भी हमें अपना दे दिया, तो उसकी सेल्स की जॉब प्रोफाइल को हमने अपनी कंपनी का सेल्स का जॉब प्रोफाइल बना दिया, एंड फ्रॉम देयर वी आर हंटिंग पीपल। तो हमारी स्टार्ट ही गलत हो जाती है, तो वी स्टार्ट ऑन द रॉन्ग नोट। तो बड़ा जरूरी है कि जॉब प्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन मैं इससे भी एक स्टेप आगे जा रहा हूं कि एक्सपेक्टेशंस सेटिंग होनी चाहिए विच इज बियॉन्ड द जॉब प्रोफाइल। तो जो उसके, अगर सपोज इट्स अ मल्टी हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप हैं और आपके नीचे मैनेजर है और उसके नीचे टीम मेंबर्स हैं, सो देन यू शुड सिट विद योर मैनेजर्स एंड अलोंग विद योर टीम मेंबर्स। ये आप तीनों लेवल के लोग में बैठना चाहिए, एंड इन योर प्रेजेंस द एक्सपेक्टेशन सेटिंग शुड बी डन। तो व्हेन वी से एक्सपेक्टेशन सेटिंग शुड बी डन, तो जॉब से क्या एक्सपेक्टेशंस है, जॉब प्रोफाइल है लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अक्सर टीम मेंबर्स, यू विल बी सरप्राइज्ड, एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ऐसा पाया गया 75% से ऊपर टीम मेंबर्स को क्लैरिटी नहीं थी कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। दे थॉट कुछ एक्सपेक्टेशन है, मैनेजमेंट को था कि ये एक्सपेक्टेशन है, देयर वाज अ ह्यूज मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो जब एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी नहीं है कि क्या चाहिए उससे, तो फिर कैसे परफॉर्मेंस आएगा। और लोग काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, वो तो आता है 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, लेकिन जो वो काम कर रहा है और जो आपको काम चाहिए, दोनों में अगर मिसमैच है तो कैसे प्रोडक्टिविटी आएगी। सो फर्स्ट सिट एंड शेयर, दिस इज द एक्सपेक्टेशंस व्हिच वी हैव फ्रॉम यू, हैव इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। जॉब प्रोफाइल है उसके ऊपर बैठो एक बार, और over and above the job profile, make sure that you have your expectation setting done. We expect you to make 3 calls a day. We expect that you finish this accounting work in 8 hours. We expect that this work should not take more than 1 hour. तो कभी कभी उसको भी मालूम नहीं होता कि यार ये काम 1 घंटे में होना चाहिए, उसको लगता है ये काम कभी भी होना चाहिए, कभी तो करके देना है। बट वंस यू डू द एक्सपेक्टेशन सेटिंग, पीपल बिकम अ लॉट मोर क्लियर, मैनेजमेंट बिकम्स अ लॉट मोर क्लियर, उसके मैनेजर को भी क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ भाई ये मुझे चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग देम प्रोडक्टिव। So first is expectation setting. Second, once you have done the expectation setting, you've got job profiling done. They know now this is the work. The second step which you got to do is you got to ask them. You got to ask them, uh, what help do you need from our side? What kind of tools you need? तो कभी उनको tools चाहिए होता है, उनको resources चाहिए होते हैं. So maybe they need certain kind of hardware with them. So they need certain gadgets or laptops चाहिए होते हैं, या उनको they need some whatever they need. They may need some software to work on it. So what is that thing which they need in terms of the resources? And you need to train them on those resources. तो उनको जो आप टूल्स देते हो, वो टूल्स को यूज करने की भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि दिस इज द वे यू आर गोइंग टू यूज दीस टूल्स। तो फर्स्ट स्टेप, set the expectations right. Second is ensure that you have the resources given to your team members. Once the resources have been given, you train them on the resources. Third is there is a certain behavioral aspect which is there. वो कहीं से भी आने दो उस टीम मेंबर को। He may come from the best of companies, he may have great experience or he may not have great experience. वो आपके पास आया है ना काम के लिए, so don't expect that he will start working uh, at the best of his capabilities, or he will start working the best. You got to align him with what you need. तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का कल्चर, आपकी कंपनी का बिहेवियर लेवल, that has to be shared with him. So behavioral training comes, like for example, अभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, we have a very strong culture of relationship building, and that's what we have been doing for last 25 years. So हमारा अभी एक नया बच्चा सेल्स में आया, so we have been sharing with them that what we are. For example, we don't call customers, or we don't call them clients, so we call them Chrysalians. तो वो उसके मुंह से वो क्रिसिलियन वर्ड निकले, उसके मुंह से वो क्लाइंट वर्ड हट जाए. So we have been telling him, reminding him time and again. It will take some time. अब वो कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि उसने जहाँ काम किया 5-6 साल, उसने हमेशा हर कस्टमर को कस्टमर बोला है, क्लाइंट को क्लाइंट बोला है. सो आई हैव अ क्लाइंट मीटिंग, और आई हैव अ मीटिंग विद आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर. ऐसा उनका भाषा होती है. हम कहते हैं वी डोंट मीट कस्टमर्स, वी मीट क्रिसिलियंस. तो ये आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उस पे.
तो बिहेवियरल एस्पेक्ट पे कहां पर वो कमजोर पड़ रहा है, अगर वो सेल्स में है तो सेलिंग स्किल्स की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अगर अकाउंट्स में है तो अकाउंटिंग के ऊपर जो भी उसको ट्रेनिंग देनी है वो देनी पड़ेगी, इफ इज इनटू परचेज तो परचेजिंग में उसने कैसे काम करना है उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. सो यू यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो अच्छी कंपनी से आया है तो बिना ट्रेनिंग के वो कामयाब हो जाएगा. आपको उसको इनपुट्स देने ही पड़ेंगे, कभी कम देने पड़ते हैं, कभी ज्यादा देने पड़ते हैं, बट इनपुट्स देने पड़ेंगे. सो वी आर ऑन पॉइंट नंबर 2. थर्ड, after you have given him the training, you've got the expectation of the job right, then third point is you have your deliverables set. ये बड़ा जरूरी है, एंड इट्स अ सिंपल फ्लो. मैं कोई ऐसा रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे. इट्स अ सिंपल फ्लो. थर्ड, यू हैव द डिलिवरेबल सेट कि भाई तुमसे हमें क्या चाहिए एज एन आउटकम. पहला वाला एक्सपेक्टेशन सेटिंग है, तुमने ये काम करना है. सेकंड हो गया कि आपने वो काम को कैसे करना है उसकी हेल्प कर दी बाय गिविंग हिम रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग. थर्ड हो गया कि आपने कहा अब रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे आउटकम क्या चाहिए, चलो उस पर बात करते हैं. तो आप कहते हो कि मुझे तेरे से महीने में ये आउटपुट चाहिए, तेरे से मुझे इस क्वार्टर में ये आउटपुट चाहिए. ऐसा करके आप उससे आउटपुट पे एक क्लैरिटी करते हो. सो यू सेट द एजेंडा इन टर्म्स ऑफ नाउ व्हाट्स द रिजल्ट व्हिच यू वांट. नाउ दैट इज a very crucial factor in the performance mapping of a team member. And this has to be a very thought of result oriented approach. अब ये नहीं कह सकते कि आपने वो नया बच्चा आया आपने उससे चांद सितारे तोड़ लाऊंगा वाला एक्सपेक्टेशन रख दिया. You have to keep in mind that he's a new guy. He will require some time to take off. He will need a runway where he needs to gain speed. So from day one, you can't expect the world from him. So slowly, you say, okay, the first 3 months, I will expect 1, 2, 3. If he's a seasoned guy, then this means you have a different expectation of the results. तो आप उसका results की expectation setting करते हो. Fourth step, after you have done the result expectation setting, now it's time to give him ongoing feedback. And that's number 4 step. You give him an ongoing feedback. You don't give him a feedback after the operation is over. The patient is dead, operation successful. You have to give him a feedback while operating, while he is working. क्योंकि वो 3 महीने बाद फीडबैक दोगे कि यार तेरा अच्छा नहीं हुआ, तब तो 3 महीने निकल गए ना. And he doesn't become better in that. So you have to give him a ongoing feedback. And what do you do in ongoing feedback? So you meet him every week. Depends on the kind of work he's doing. You may even meet him every day. You meet him every week in a structured way. And you say, okay, we'll take a review after 1 week. And week after week after week, you take the review. You give him feedback. You give him constructive feedback. अच्छा इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले. So you have kind of an eye on the direction which he's going. He feels that I'm being corrected and I'm in in the right path. And then after 1 quarter is over, 3 महीने बाद, you know some results have come out. Now, ये इसके अब मैं जो पॉइंट पे आ रहा हूं ना, जो नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, दिस पॉइंट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. द फिफ्थ पॉइंट इज द अप्रोच ऑफ द एंटरप्रेन्योर और द अप्रोच ऑफ अ टीम लीडर. मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं. ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन अ नॉन परफॉर्मर्स लाइफ और अ टीम मेंबर्स लाइफ कि दैट दिस अप्रोच कैन एक्चुअली this point can make a performer into a non-performer, and this point can make a non-performer into performer. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ये पॉइंट है द अप्रोच ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. कि आपका अप्रोच कैसा है उस टीम मेंबर के प्रति, आप उसको देखते कैसे हो. आपका जब भी आप उससे उसका आपसे कम्युनिकेशन होता है, जब भी आपका दोनों का इंटरवेंशन होता है, what do you have in your mind? So there's one thing which you should have in your mind always. And that one thing is that this team member of mine should win. He should be successful. She should be successful. तो आपका सारा जो कम्युनिकेशन है उसके साथ, आपका सारा जो उसके साथ इंटरेक्शन है, आपका सारा जो उसके साथ कभी भी जो डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, कभी आर्गुमेंट्स हैं, कभी टेम्पर्स हाई हो जाते हैं, कभी हम प्यार से बात करते हैं, लेकिन जो भी आपका कम्युनिकेशन है उसके साथ, उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस आपका है वो बहुत क्लियर है. और वो थॉट प्रोसेस है, आई वांट हिम टू बी सक्सेसफुल. और जितना ये आपके मन में ये बात क्लियर रहेगी, उतना ही आपके बिहेवियर के थ्रू उस टीम मेंबर तक जाएगी.
that whatever you're doing is to make him successful. कहीं जाने अनजाने में अगर ये आपके पीछे की धारणा नहीं रही तो आप देखोगे आपके बिहेवियर में वो दिखाई देगा. एंड आई एम टेलिंग यू दिस, यू शुड वॉच योर मैनेजर्स हु आर लीडिंग पीपल. आप कभी देखो ना उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो कभी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होती है. दे काइंड ऑफ डिसबिलीव इन देयर पीपल. दे आर वर्किंग विद देम, उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा ऐसी होती है, यार इससे तो हो नहीं पाएगा, तो रखा क्यों है इसको? फायर हिम ना, थ्रो हिम आउट. आपने उसको रखा भी है और आप उस पर डिसबिलीव भी करते हो, उस पर अविश्वास भी करते हो, तो रखा क्यों है? जब तक वो है आपके साथ, तब तक आपने आपके अंदर की धारणा, जो कोर ऑफ योर इनर बीइंग शुड से, hey, I got to make him successful. I got to make him a performing team member. क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छा है, वो उसके लिए भी अच्छा है. क्योंकि वो परफॉर्म करेगा, he will feel great about himself. उसका सेल्फ एस्टीम ऊपर जाएगा. He will become more productive. The moment he becomes productive, the organization becomes productive because customers, they get the best from the team members. तो अगर वो है, तो विश्वास करो कि वो आपके अंदर का एक फीलिंग आना चाहिए. द बिलीफ शुड बी देयर दैट ही शुड बी सक्सेसफुल एंड आई विल मेक हिम सक्सेसफुल. ये अप्रोच से बहुत फर्क पड़ता है. एंड इफ यू वुड कीप these 5 points in mind, now this is where the entire, you will see performance का लेवल काफी ऊपर हो जाएगा अगर आप इन स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स के थ्रू आप जाओगे. ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट मोर which has to be discussed and thought of. अब हम आते हैं टू अनदर पॉइंट ऑफ इट, वेयर आपने ये सब किया, आपने उसका एक्सपेक्टेशन सेटिंग किया, आपने जॉब प्रोफाइल उसको समझा दिया, आपने उसको रिसोर्सेज दे दिए, आपने उसको रिसोर्सेज की ट्रेनिंग दे दी, आपने उसको फीडबैक भी दिया, मॉनिटरिंग भी आपने कर ली, आपने उसका रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर लिया, एंड you're kind of seeing and overlooking and giving him constructive feedback also, ये भी आपने कर लिया. आपने अपना अप्रोच भी अच्छा रखा, और उसके बाद भी वो नॉन परफॉर्मिंग है, तब क्या करना चाहिए? तो एक शॉर्ट में एक लाइन बोलता हूं, वी मेंड देम और वी एंड देम. तो ये कॉल आपको लेना है कि क्या मैं उसको मेंड करूं, उसको मैं ठीक करूं, या मैं उसको एंड करूं, मतलब वो रिश्ता खत्म करके उसको टाटा गुड बाय कर दूं. ये कॉल आपके पास एक सिचुएशन आती है. तो लोग मेरे से पूछते हैं, सर क्या करें? तो आई ऑलवेज से दैट एंड करना तो बड़ा आसान है यार. बिकॉज एंड किया तो आपने क्या करा, मतलब वो है ना कि खटाक आपने कैंची मारी और वो रिश्ता खत्म कर दिया. एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय मदर, दैट वो और एंड काफी यू विल सी दैट लॉट ऑफ मदर्स वुड बी डूइंग इट. आई डोंट नो, बट माय मदर वुड ऑलवेज डू इट. कि वो जब कोतुम्बीर या धनिया जब आता है ना मार्केट से, तो उसमें सुतली बंधी होती है, धागा बंधा होता है. तो she would put an effort into opening the knots, put an effort to opening the knot of that जो bundle होता है of coriander. And easy way is to actually use a scissor or a knife और वो काट दो उसको. लेकिन उनका हमेशा ऐसा सोच होती है, और वो कहती हैं कि ये आदत इससे जब है ना, ये मैं खोलती हूँ, इसमें समय लगता है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, एंड विद एज शी हैज टू वेयर स्पेक्स एंड सी वो कहाँ पर नॉट है, गांठ कहाँ पर है, उसको खोलना टाइम लगता है उनको. वेर इज इजी टू जस्ट टेक अ नाइफ एंड उसको काट दो. बट शी सेज मैं ये करती हूँ जिससे मुझे बार बार याद आता है कि रिश्ते भी तो ऐसे होते हैं कि रिश्तों में भी नॉट आ जाती है, तो उसको खोलना पड़ता है. और अगर नॉट खोलने की आदत नहीं रही, तो फिर इसका मतलब हम चाकू यूज कर रहे हैं, हम कैंची यूज कर रहे हैं, वो तो बड़ा आसान है, तो फिर वो तो धागा ही खत्म ना, बेकार हो जाता है. लेकिन अगर आपने उसको खोला, तो फिर अगली बार के लिए फिर काम आ सकता है. तो रिश्तों में भी ऐसा होता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग इट फॉर योर टीम मेंबर्स, कि आइदर यू एंड देम और यू मेंड देम. तो एंडिंग तो बड़ा आसान है, उसको गुड बाय बोल दो. लेकिन मेंड करोगे तो शायद चांसेस हैं कि वो कुछ बन जाए. मेंड करोगे, उसको ठीक करोगे, तो चांसेस हैं कि ठीक करते करते आप भी और अच्छे बन जाओ. एंड मुझे लगता है कि काफी लोग मेंडेबल हैं, काफी लोग ठीक करने योग्य हैं, हम सिर्फ उतने एफर्ट नहीं डालते. तो क्या करना चाहिए? You handhold him, and that's where personal coaching comes into picture. अगर वो important है, you personally coach him. उस पे हम निगाह रखो, हर दिन उसका आप फीडबैक लो, हर दिन उससे मिलो,
हर दिन उससे पूछो भाई व्हाट कैन बी डन नाउ मोर, एंड 1-2 महीना अगर आपने टीम मेंबर को दी जहां पर उसको आप रोज कोच कर रहे हो, क्यों नहीं अच्छा बन जाएगा? एंड देयर विल बी स्टिल अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल लेफ्ट, मे बी 5-10%, 20% लोग ऐसे रह जाएंगे जो इतना सब करने के बाद भी वो लोग ठीक नहीं होते। देन यू हैव एन इजी कॉल ना। So that's where this concept should come into your mind कि is he a well intentioned incompetent person, well intentioned but incompetent, इसके intentions अच्छे हैं लेकिन ये incompetent है। तो ऐसे अच्छे intention वालों को हम competent बना सकते हैं क्योंकि intention अच्छे हैं। लेकिन आपने उसके मेहनत करी, 2-3 महीना आपने उस पे काफी मेहनत करी, वो फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो somewhere you will understand he is ill intentioned एंड इनकॉम्पिटेंट ऑल्सो। तो बड़ा इजी कॉल है, इंटेंशन भी अच्छे नहीं है, कॉम्पिटेंट भी नहीं है, तो इसको रखना क्यों है? भाई जयराम जी की जा भाई, शायद हम तेरे लिए अच्छे नहीं है। ही इज इल इंटेंशन, उसके इंटेंशन भी अच्छे नहीं है और कॉम्पिटेंट भी नहीं है। प्रॉब्लम कब आता है? जब इंटेंशन बेकार होते हैं, अच्छे नहीं होते, लेकिन वो कॉम्पिटेंट होता है, वो काम तो करता है लेकिन काबिल है वो, बट इंटेंशन अच्छे नहीं है उसके। तो फिर ऐसे में बड़ा झिझक, बड़ा अंदर से होता है कि क्या करूं, इसके अंदर काबिलियत तो है, ये है स्मार्ट, इसकी इंटेंशन, इसकी नीयत सही नहीं लगती है। आई वुड ऑलवेज से इन स्पाइट ऑफ ही बीइंग केपेबल गाय, बट उसकी अगर नीयत अच्छी नहीं है, ही इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्लेयर फॉर द कंपनी, ही इज नॉट अलाइंड विद द कंपनी, ही इज नॉट अलाइंड एथिकली विद द कंपनी। तो क्योंकि इंटेंशन अच्छे नहीं है तो आपको गुड बाय बोलना ही पड़ेगा उसको, राइट? द बेस्ट वुड बी दैट यू हैव अ वेल इंटेंशनड कॉम्पिटेंट गाय, एक अच्छी नियत वाला और एक अच्छा काबिलियत वाला इंसान मिल जाए, तो फिर इसको बोलते हैं मोक्ष। हम्म? तो अगर ऐसे 2-4 लोग मिल गए आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम श्योर you will create wonders in your organization। और हमें ऐसे 2-4 लोगों की जरूरत होती है टू स्टार्ट विद, एंड देन ये 2-4 फिर और 2-4 क्रिएट करते हैं, फिर ऐसे 2-4 क्रिएट करते हैं, एंड इफ ऐसा क्रिटिकल नंबर आ गया, देन a lot of things can happen। And I wish I could share a lot more on this because it's a beautiful subject, and again I'm sharing this that uh, this is no substitute for a longer duration intervention on business. I mean, whether you come to us for learning and growth, whether you go somewhere else, it doesn't matter, but ye chote chote snippets are nothing else but just to help you at that moment, lubricate you to handle your problems, but they are in no way replacements for a long term intervention। कि आपको अगर अच्छा एथलीट बनना है, आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, सो यू कैन वॉच अ वीडियो और टू हियर एंड देयर एंड अंडरस्टैंड मैं क्या ठीक करूं। लेकिन अगर बढ़िया अव्वल दर्जे का आपने एथलीट बनना है, तो सस्टेन्ड एंड लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन लगेगा किसी कोच का जो आपको वहां तक पहुंचाए। ऐसी मेरी आपको राय रहेगी। सो snippets are fillers, those who have done the program, they listen to it, they're able to connect back again to what I had said earlier, ये उनको बड़ा हेल्प करता है। लेकिन जो नए लोग होते हैं, और मैं देख रहा हूँ आजकल की दुनिया में कि यूट्यूब की दुनिया में हम सिर्फ ये टिप्स लेके जिंदगी अच्छा करना चाहते हैं। तो मेरे से जो लोग पूछते हैं सर व्हाट्स द बिगेस्ट टिप, एंड आई ऑलवेज से डोंट टेक अ टिप, दैट्स द बिगेस्ट टिप। तो टिप से एक टेम्पररी एक रिलीफ मिलता है, टेम्पररी एक फायदा मिलता है, बट लॉन्ग टर्म तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता उसका। सो जस्ट वांट टू शेयर विद यू, and if you want to maximize on your growth, then jump into a sustainable long term association with some business coach of yours। Chaliye, great। Avinash says with wrong intention and high skills, वही मैंने बोला ना, wrong intention with high skills, ये मौत होती है, because उसकी काबिलियत बहुत है लेकिन intention अच्छे नहीं है। So what you do is you kind of put him into a 3 month warning zone. So you tell him that 3 months we expect you to work on 1, 2, 3, 4 aspects, and if not, then we will have to say goodbye to you. So you kind of put him into that, or you say that we will take away, if not goodbye, you say we will take away these responsibilities from you, or we'll take away this project from you। तो फिर आप कहीं ना कहीं उसको आप एक प्रेशराइज कर रहे हो that he has to become better। एंड इफ आफ्टर 3 मंथ्स अगेन वो नहीं कर रहा है, तो फिर तो कॉल इजी है ना कि नहीं हो रहा है, तो फिर देन विल से गुड बाय, विल हैव टू हैव समबडी एल्स। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काबिलियत बड़ी अच्छी है लेकिन इल इंटेंशनड है, तो इसमें बड़ी मौत होती है। इनफैक्ट
there's a beautiful 7-step process by which you filter such people. तो कभी आप बारह समझती में about, I'll share with you a beautiful 7-step process as to when you should know, when you have to let go of these ill-intentioned but capable people. इनसे कैसे मुक्ति पाए, या फिर इनको कब निकालना चाहिए, निकालना नहीं निकालना चाहिए, कैसे मालूम पड़ेगा आपको. So it's a beautiful 7-step process which is there, which I may be able to share if you're there with me. And so that's what it is for today. Hmm? And just want to share about 2 programs, upcoming programs. One is on 20th of December. एक बड़ा अच्छा मेरा offline program हो रहा है, the Entrepreneur Growth Summit. So if you want to be there, you can be a part of this program. Social media में इसके links होंगे available. You can register. It's a 3-hour beautiful workshop, and we're doing it after a lot of time because online चल रहा है तब से. तो एक offline program हो रहा है. So see if you want to be there for that program. It will give you a lot of insights in those 3 hours about your business, about team, about leadership, about customers, about service side. बहुत सारे insights आपको मिलेंगे उन 3 घंटों में, and whatever I can give to you in those 3 hours. So see if you want to be there for that workshop for the day, the Entrepreneur Growth Summit. आइए उसमें, and take charge of your team and take charge of your people by these 3 simple 5 steps which I have lined up for you. And do keep on sharing with us your feedback on if these sessions are making any impact on your business and your thought process also. आप हमसे share करते रहिएगा, ठीक है जी. So wish you the very best and make a great business day for yourself today, and all those who will be watching this video later on YouTube. All the best to you, and make a great life. Thank you, everybody. Namaste.